Hello everyone. Today in chapter 1 of business studies class 11th evolution and fundamentals of business, I am going to discuss a very important topic, that is classification of business activities. Let's start the topic. Business activities are classified into two categories. First is industry and second is commerce. As you see here the chart of classification of business activities, that is first is industry and second is commerce. When we see the industry is further classified into three categories, that is primary industry, secondary industry and tertiary industry. Again, primary industry is further classified into two categories, that is extractive industry or genetic industry. Now secondary industry is classified into two categories, that is manufacturing and construction industry. Then manufacturing industry further classified into analytical industry, synthetical industry, processing industry and assembling industry. When we see the commerce is classified into two categories, that is trade and auxiliaries to trade. Trade is further classified into internal and external. Internal trade is further classified into wholesale trade and retail trade, and external trade is further classified into import, export and interport. Now auxiliaries to trade, it is further classified into transportation, warehousing, insurance, banking and finance and advertising. So this is the chart of showing business activities and its classification. Now see classification of business activities. First is industry. Now meaning of industry. Industry refers to that part of business which is concerned with production of goods and materials. जहाँ पर goods and materials का production किया जाता है, that is known as industry. An industry may be classified into primary, secondary and tertiary industry. Industry को further अगर हम classify करें तो ये तीन कैटेगरी में, जैसा आपने चार्ट में देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री. नाउ इंडस्ट्री की एक और मीनिंग हम देखें. इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स और गुड्स. इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पर है कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसके अंतर्गत हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके यूजफुल प्रोडक्ट्स या गुड्स को बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज इंडस्ट्री. The term industry is also used to refers to a group of firms producing similar or related goods. इंडस्ट्री टर्म का यूज़ सेम टाइप की जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज़ होती हैं या फॉर्म्स होती हैं, उनके लिए भी कॉमन इंडस्ट्री वर्ड यूज़ होता है. जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स को बनाने वाली जितनी भी कंपनीज़ हैं सभी के लिए इंडस्ट्री. इसी तरह सेम टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट बनाने वाली जितनी भी कंपनीज़ हैं, that is the part of textiles industry. Now industry further primary industry, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री. नाउ प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली इंगेज्ड इन एक्सट्रैक्टिंग, प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. प्राइमरी इंडस्ट्री एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड होता है, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर एक्सट्रैक्टिंग और प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू हम यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ के दो पार्ट हैं. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो इसके अंदर दे आर इंगेज्ड इन एक्सट्रैक्शन. यहाँ पर एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड होते हैं. यूज़फुल मटेरियल फ्रॉम अर्थ आर सी, ये निकाला जाता है. जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं कि फ़िश को निकाला गया है रिवर में से, तो इसी तरीके से माइनिंग है, फिशिंग, एग्रीकल्चर एंड क्वेरिंग. दीज आर द पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री अंडर द प्राइमरी इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोल माइन से कोयले को निकाला गया है, तो दिस इज़ अगेन द पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. और दूसरा इसका पार्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्री इंगेज्ड इन रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जहाँ पर रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है और प्लांट्स का या एनिमल्स का रियरिंग एंड ब्रीडिंग होती है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री. और इसके अंतर्गत प्लांट नर्सरीज आती है, पोल्ट्री फार्म आते हैं, कैटल ब्रीडिंग,
फॉर्म्स, ये सभी कुछ जो हैं दिस इज़ द पार्ट ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री को जैसा हमने बताया 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री they are concerned with the materials which have already been produced at primary stage, means प्राइमरी इंडस्ट्री पर जो मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उसी मटेरियल को ले करके आगे जब हम प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इसके एग्जांपल्स हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री or those industry which makes use of products which are extracted and produced by primary industry as their raw material and produced finished goods। प्राइमरी इंडस्ट्री के जो भी मटेरियल्स होते हैं उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री के द्वारा एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है और उससे फर्दर फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉरेस्ट से सपोज करिए, फॉरेस्ट से वुड लाया गया और ये वुड लेने का जो एक्टिविटी है दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। और प्राइमरी इंडस्ट्री में जब इस वुड को लाया गया तो ये वहाँ का गुड्स है और इसको ला करके सेकेंडरी इंडस्ट्री में इस वुड को यूज़ करके फर्नीचर बनाया गया। तो फर्नीचर फिनिश गुड्स बना यहाँ पर, और ये जो बनाया गया ये बनाने की जो इंडस्ट्री है दैट इज़ सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो इन्होंने जो प्राइमरी इंडस्ट्री का जो मटेरियल था उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करके फिर उसका फर्दर प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड्स बनाया फर्नीचर के फॉर्म में। Secondary industry is further classified into 2 categories, manufacturing and construction industry. Now manufacturing industry. These industries are engaged in process of conversion of raw material or semi-finished goods into finished goods. ये इंडस्ट्री जो होती हैं रॉ मटेरियल का कन्वर्जन या सेमी फिनिश गुड्स का कन्वर्जन फिनिश गुड्स में करती हैं। दिस इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ये जो इंडस्ट्री है फॉर्म यूटिलिटी को बनाती है जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को में जो गुड्स होते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, और ये जो गुड्स होते हैं कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंगेज्ड विद कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। अब यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं इस चित्र में कि जैसे कॉटन है और इसको कन्वर्ट किया गया, इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया, ये प्राइमरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे क्लॉथ में कन्वर्ट किया गया। तो इस तरीके से जो ये मैन्युफैक्चरिंग किया गया दिस इज़ अंडर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दे चेंज द फॉर्म ऑफ गुड्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स एंड दस क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री की बात की जा रही है जहाँ पे सीमेंट के जो रॉ मटेरियल्स हैं इसमें वेरियस रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके यहाँ पर सीमेंट बनाया जा रहा है जो कि ये फिनिश गुड्स है। तो इन्होंने यहाँ पर फॉर्म यूटिलिटी किया, जो ये रॉ मटेरियल है इसकी फॉर्म को कन्वर्ट किया और यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज़ द पार्ट ऑफ फॉर्म यूटिलिटी। दे प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जैसा हमने बताया 2 तरह के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो कॉमन पीपल अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करता है दैट इज़ कंज्यूमर गुड्स, और इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर या कैपिटल गुड्स के अंदर जो हैवी मशीनरी वगैरह होती हैं जिनको कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए। Now types of manufacturing industry. There are different types of manufacturing industry. First is analytical industry, synthetic industry, processing industry and assembling industry. So there are 4 type of manufacturing industry. Now see one by one. Analytical industry. एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंतर्गत बेसिक जो होता है कि यहाँ रॉ मटेरियल जो होता है वो सिंगल होता है और इसके जो गुड्स होते हैं, जो फिनिश गुड्स होते हैं वह कई इसमें बनते हैं। एक रॉ मटेरियल को यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनिश गुड्स को बनाया जाता है, तो दैट इज़ नोन एज एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालाइजेज एंड सेपरेटेड डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम रॉ मटेरियल। इसका एग्जांपल है ऑयल रिफाइनरी जहाँ पे क्रूड ऑयल यूज़ किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल और इसको लेकर के सेपरेटेड इनटू ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड गैसोलीन, इसमें बनाया जाता है। तो एक रॉ मटेरियल यूज़ करके जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स को फिनिश गुड्स को बनाया जाएगा तो जहाँ जिस इंडस्ट्री में बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री।
9 सिंथेटिकल इंडस्ट्री, इसमें जो हम कंबाइन करते हैं वेरियस रॉ मटेरियल्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हैं और उसके बाद हम सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सीमेंट इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे। तो सीमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लाइम, सिलिका और मैग्नीशिया, ये सभी मटेरियल्स को मिला करके यहाँ पे सीमेंट को प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसी तरह केमिकल इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन सभी में डिफरेंट रॉ मटेरियल को मिक्सर करते हैं, एक साथ मिलाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को हम बनाते हैं। तो दीज आर द पार्ट ऑफ सिंथेटिकल इंडस्ट्री जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती है। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इट इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट, जहाँ पे कई जो प्रोडक्ट्स हैं वो कई स्टेज से हो करके तैयार होते हैं। जैसे रॉ मटेरियल्स को फर्स्ट स्टेज में लाया गया, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, सेकंड स्टेज में आया, फिर थर्ड स्टेज में आया, नेक्स्ट लास्ट स्टेज में आया, अब जाके फिनिश गुड्स तैयार हुआ। तो जहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू जो है डिफरेंट स्टेप्स के बाद जो है फिनिश गुड्स को बनाया जाता है, इस इंडस्ट्री को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और इसका एग्जांपल है शुगर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री है, जहाँ पे प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ होती है और डिफरेंट प्रोसेस से होने के बाद जो है फिर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, फिनिश गुड्स को बनाया जाता है। नेक्स्ट इज़ असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में यहाँ पर असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट को एक साथ असेंबल किया जाता है। और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आती हैं। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक मोबाइल को बनाने के लिए जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसको एक साथ असेंबल किया गया और हमारा एक नया प्रोडक्ट मोबाइल बन गया। इसी तरह कार है, टीवी है, कंप्यूटर है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ असेंबलिंग इंडस्ट्री। इन सभी प्रोडक्ट को असेंबलिंग इंडस्ट्री में बनाया जाता है। नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंतर्गत कंस्ट्रक्शन वर्क किए जाते हैं। दिस इंडस्ट्री आर एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स एक्सेट्रा। दिस industry use the products of manufacturing industry as a raw material for construction as cement, iron, steel and lime। इन सभी को यूज़ करके जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जैसे कि बिल्डिंग, डैम और रोड वगैरह की बात की गई। द यूनिक फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इज़ दैट प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड टू द मार्केट, इट रिमेन एट द सेम प्लेस वेयर इट इज़ कंस्ट्रक्टेड। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ये एक बहुत यूनिक फीचर है कि इसमें जो भी प्रोडक्ट बनाए जाएंगे वह उसी जगह पर पड़े रहेंगे जहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री engaged in construction of building, dam, roads, bridges, etc. They use the products of manufacturing industry and extractive industry। इन सभी इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं अपने लिए रॉ मटेरियल के तौर पे और फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री दैट इज़ टर्शियरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। इसमें ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग जैसी सर्विसेज आती हैं, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री दोनों के लिए ये सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इनको सर्विस इंडस्ट्री भी कहा जाता है। प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, मूव करने के लिए, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और ये टर्शियरी इंडस्ट्री के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, फाइनेंस को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए, सेलर के अकाउंट से बायर के अकाउंट, बायर के अकाउंट से सेलर के अकाउंट तक पहुंचाने के लिए जो है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। साथ में लोन वगैरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है इंडस्ट्रीज़ को। तो दिस इज़ द फ्रॉम बैंकिंग सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज के थ्रू रिस्क को बियर किया जाता है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं और इस रिस्क के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की जो सर्विसेज होती है दैट इज़ इंश्योरेंस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। वेयर हाउसिंग के द्वारा जो है गुड्स को
टिल द डिमांड जो है सेफ़ कंडीशन में रखा जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज है जो टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि प्रोडक्शन और कंजप्शन में टाइम गैप होता है और उस दौरान गुड्स को जो है सेफ़ कंडीशन में वेयर हाउसिंग सर्विसेज के थ्रू यहाँ पर वेयर हाउसेज में रखा जाता है। और जब डिमांड होती है तो इमीडिएटली डिमांड के आते ही इसको वेयर हाउस से निकाल करके गुड्स को सप्लाई कंज्यूमर एंड तक किया जाता है। और लास्ट जो इम्पॉर्टेंट सर्विसेज है सर्विस इंडस्ट्री का या टर्शियरी इंडस्ट्री का, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग। गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है थ्रू द एडवर्टीजमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सभी जो सपोर्टिव या आप कह सकते हैं सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटीज़ है, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय टर्शियरी इंडस्ट्री। और बिना टर्शियरी इंडस्ट्री के सहयोग के हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए टर्शियरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, दैट इज़ इंडस्ट्री। आई होप आपको ये सभी जो एक्टिविटीज़ हमने बताया टर्शियरी इंडस्ट्री का या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसमें आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंतर्गत आपने देखा, और प्राइमरी इंडस्ट्री, ये सभी कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।